you are asked any message like recording is on and you want to part of it, so just click on yes. ठीक है. Okay, so let's see row reduction and echelon form. What is row reduction and echelon form? We have basic elementary row operations on matrices and we are applying that row wise, so we are calling that elementary row operations. Okay, now what we are going to do with the elementary row operations? So we are going to apply to get various form and then to solve the linear equations. So all this will be leading to us for solving the system of linear equations, and they are very important. They can come from any of the real life problem or the science problem. So how we are going to do it? So let's learn that what is echelon form, and you have already learned it, so we are just going to revise it. That what is echelon form? So echelon form or row echelon form, because we will be doing all the things row wise, so this row is in evident. Okay, so row echelon form or echelon form meaning what? That when you look at a matrix, I'm explaining in layman language and then we are reading the definition, book definition. So in a layman language is what? In a layman language, that as you go down, you should be getting more and more starting zero. Okay? You should be getting more and more starting zero. That's all. So if the first row has 1 0, the second row should have more zero, more starting zero. तो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में एक है, यहाँ पर 3 होगा, गुड इनफ. बात की हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स जैसे स्टार्ट हो गया उसके बाद चाहे सारे जीरो, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं. वी आर ओनली लुकिंग फॉर द स्टार्टिंग जीरो. सो अगर स्टार्टिंग में कुछ जीरो नहीं है, अगर सपोज यहाँ पे जीरो नहीं भी होता और यहाँ पर 3 जीरो है, गुड इनफ. बट इसके बाद वाली जो रो है, इन द नेक्स्ट रो देयर शुड बी मोर जीरो. अगर यहाँ पर 2 ही जीरो है सपोज और यहाँ पर एक 2 आ गया, so this needs to be converted into echelon form. How? By elementary row operations. And what are the elementary row operations? You can interchange any row, you can multiply with any non-zero number, and you can take the sum of a row with the multiple of the other row. So we are going to apply this row operation, elementary row operation, which is interchanging this row, two rows. So this 2 will come here, this 0 row will come here, and now it is in the echelon form. Okay? So echelon form means as we go down, the number of starting zero should increase. Okay, so all the non-zero rows are above any row of the zero rows. तो किसी रो में अगर सारे के सारे जीरो है तो वो तो सबसे नीचे चली जाएगी ना, ऑब्वियसली. ठीक है, क्योंकि किसी में नॉन जीरो है तो उसको आपको ऊपर ले जाना है. सो ऑल द नॉन जीरो रोज विल बी अबव एनी रो ऑफ ऑल जीरोस. Then each leading entry of a row is in a column to the right of leading entry of the row above it. So जैसे कि कोई लीडिंग एंट्री मतलब नॉन जीरो के बाद जो पहला जीरो आया है वो कहाँ होना चाहिए? राइट में होना चाहिए, उसके ऊपर वाली रो पे. ठीक है, मतलब यहाँ पर ज्यादा जीरो होना चाहिए. सो अगर यहाँ पर 2 जीरो थे और फिर एक 1 है, तो उसके बाद वाला नीचे जो है उसमें यहाँ पर 1 अलाउड नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे तो जीरो क्रिएट कर सकते हो ना. सो इक्विलॉन फॉर्म मीन्स क्रिएटिंग एज मच जीरो एज पॉसिबल इन द स्टार्टिंग. तो अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर अगर 3 है, सो इस 3 को आप जीरो बना सकते हो ना इसकी हेल्प से. वो आपको करना है. ठीक है, तो जो भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा हर रो का, वो होगा राइट साइड में ऑफ द लीडिंग एलिमेंट ऑफ द प्रीवियस रो. ठीक है, ऑफ द रो अबव इट. एंड थर्ड इज ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर जीरो. तो जैसे कि किसी किसी मैट्रिक्स में एक एंट्री जो है आपकी नॉन जीरो है, उसके बाद नीचे के सारे रो में उस कॉलम में जो सारी एंट्रीज होंगी वो जीरो होंगी. अगर नहीं है तो आप बना लो बाय यूजिंग सम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, जो कि आप कर सकते हो. ठीक है, तो जैसे आप एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना आपने सीखा है अपनी 11th-12th में, या फिर डिटर्मिनेंट के लिए आप जीरोस क्रिएट करते थे, वैसे ही आपको काम इसमें करना है. ठीक है, तो ये हो गया इकेलॉन फॉर्म की बात. नाउ व्हाट अबाउट द रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म? Reduced echelon form is something more than this. It demands that once you get this echelon form, now proceed further and make each non-zero entry, first non-zero entry of every row as one. So leading entry, that we are calling as leading entry.
तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन एनी रो शुड बी 1, और जो भी लीडिंग एंट्री है उसके ना सिर्फ नीचे इकेलॉन फॉर्म में क्या रिक्वायर्ड है, उसके नीचे सब जीरो होना चाहिए। रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म में क्या है, उसके ऊपर भी सब जीरो होना चाहिए। तो उसके नीचे और ऊपर सब कुछ जीरो आप बना सकते हो बाय यूजिंग दिस नॉन जीरो एंट्री विच इज 1। सो अगर ये दो काम आप और कर लोगे तो यू विल गेट रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म। ठीक है, सो इकेलॉन फॉर्म एंड रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म। अब ये क्यों आए हम रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म पे? इकेलॉन फॉर्म से we will be able to see that whether the solution of system of equations is possible or not, and what could be the solution. All right, so you can also judge from here. Now why we are studying then reduced row echelon form? Because the echelon form can be different for all of us. ठीक है, so you all may have a different echelon form for a matrix, but once we convert it into reduced row echelon form, we all will have the same answer. So for the uniqueness of the solution, क्योंकि हम जज कैसे करेंगे कि किसका सेम है या नहीं है ना, फिर हम चेक करते रहेंगे सबका कि आपने सेम सही ऑपरेशंस लगाए हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं किए हैं। सो फॉर ऑल दैट वी नीड कि सॉल्यूशन शुड बी सेम फॉर ऑल, और वो सेम कब होगा, व्हेन वी विल कन्वर्ट इट इनटू रिड्यूस्ड रो इकेलॉन फॉर्म। सो रिड्यूस्ड रो इकेलॉन फॉर्म विल गिव अस अ यूनिक आंसर फॉर ऑल ऑफ अस वट एवर वे वी स्टार्टेड। क्योंकि आप और मैं किसी भी स्टाइल में, आप सब भी आपस में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में इकेलॉन फॉर्म के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, because all you want is creating as much zero as possible in the starting, so you can have your set of operation. Okay, therefore we have reduced row echelon form, and use of both this form is what, that you are able to solve the system of linear equations, and that become very very important in today's time, especially in the time of the artificial intelligence, where this linear algebra and matrices are the backbone or the bread and butter. Okay, so you can see, find this line that linear algebra is the bread and butter of the artificial intelligence. So anyway, now we look at this matrices, and as I told you earlier as well, that a matrix, once you apply the elementary operation, whatever you get result, these two matrices are not equal, but they are called similar. Okay, so this is a keyword, an important keyword. The two matrices are similar if using the elementary row operation you can get one matrix from other matrix. So A से elementary row operations लगा के आपको B मिल सकता है, B से elementary row operations लगा के आपको फिर से A मिल सकता है। ओके, सो अब कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए हैं। जस्ट फॉर अ रिवीजन विल डिस्कस ओनली 2 एग्जांपल्स, and that too from some exercise. Yes, so now look at this matrix. Is this in echelon form or is this in row reduced echelon form? So echelon form के लिए क्या है, पहली रो देखा हमने, ऑल राइट, पहली रो में ये 1 है, सो इसके नीचे सब जीरो होना चाहिए। ठीक है, दूसरी रो देखो, दूसरी रो में ये नॉन जीरो है, इसके नीचे सब जीरो होना चाहिए, ऑल राइट। तीसरी रो में देखो, कुछ भी ऑल जीरो है। ओके, सो नेक्स्ट रो में भी ऑल जीरो होना चाहिए, नहीं है। सो नाउ दिस इज नॉट इन इकेलॉन फॉर्म। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। सो इफ दिस बिकम अ थर्ड रो में ये जीरो है, इसके नीचे ये नॉन जीरो है, इसके नीचे जीरो हो गया। ठीक है, लाइक दिस, नीचे वाला देखो। सो दिस इज नॉट इन इकेलॉन फॉर्म, लुक लाइक बट इट वाज नॉट। अब इसको देखो, 1, ओके, नेक्स्ट रो में देखा 2 के नीचे, नेक्स्ट रो में देखा। अब 4 के नीचे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फर्स्ट नॉन जीरो से मतलब है, उसके बाद कुछ भी हो तो विल नॉट सी कि 4 के नीचे भी जीरो है, नो, नॉट नीडेड। ठीक है, जैसे आपको 2 मिल गया नॉन जीरो एलिमेंट, उसके नीचे आपने चेक कर लिया, थर्ड रो में जाओ, थर्ड रो में 3 जीरो आ गए, गुड इनफ। नेक्स्ट इज नॉन जीरो, ठीक है, फोर्थ रो में ऑल जीरो, ठीक है। सो दिस इज इन इकेलॉन फॉर्म। अब रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म को चेक करना हो तो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म में क्या है, first non-zero element should be 1, so this is not 1, so this is not in echelon form, you need to convert it into echelon form। तो जो भी ऊपर नीचे चेंज होगा वो आप देख लोगे। अगर सपोज ये 1 हो जाता है और ये भी 1 हो जाता है, तो पहली कंडीशन रिड्यूस्ड रो इकेलॉन फॉर्म की सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है,
सेकेंड कंडीशन है इस वन के नीचे सब जीरो है, इस वन के नीचे ऊपर नीचे सब जीरो होना चाहिए, तो इस वन के ऊपर नीचे सब जीरो है, नहीं है, इसको भी जीरो बनाना पड़ेगा बाय सम ऑपरेशंस। दैट ऑपरेशन यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। ठीक है, अब इस कॉलम का कुछ नहीं करना है। क्यों कुछ नहीं करना है? क्योंकि दिस इज नॉट अ लीडिंग वन। ओके, सो इस कॉलम में कुछ भी नहीं देखना है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं, नो। अब आ जाओ, इसका नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ था? पहला यहाँ पर था। इस कॉलम में आपको ऊपर नीचे सब जीरो बनाना है, उसके नीचे सब जीरो है तो ठीक है, यहाँ पर जो भी है चलेगा। सो नाउ दिस इज इन द रिड्यूस्ड रो इकेलॉन फॉर्म। अब यहीं से एक और कंसेप्ट आता है पिवोट का, पिवोट एलिमेंट एंड पिवोट कॉलम। तो पिवोट एलिमेंट और पिवोट कॉलम क्या होता है? पिवोट एलिमेंट इज दैट फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एनी रो। तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एनी रो इज, दिस इज पिवोट। सो दिस एलिमेंट इज पिवोट एलिमेंट, नॉट दिस एलिमेंट, द ओरिजिनल मैट्रिक्स में देखोगे आप, इस पोजीशन को बस मार्क करोगे, दिस पोजीशन इज पिवोट, दिस कॉलम इज पिवोट। तो फर्स्ट पोजीशन, वन वन पोजीशन एंड फर्स्ट कॉलम इज पिवोट, पिवोट मीनिंग द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दे विल बी यूजफुल इन द फर्दर एग्जामिनेशन। अभी आपको बस इतना समझना है कि पिवोट पोजीशन क्या होती है, पिवोट कॉलम क्या होते हैं। तो पिवोट पोजीशन इज फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट एंड पिवोट कॉलम इज दैट कॉलम हैविंग दैट एलिमेंट। तो ये कॉलम और ये ये एलिमेंट बन गया पिवोट, ये कॉलम सेकेंड कॉलम इन द टू टू पोजीशन बिकम पिवोट, थर्ड कॉलम में नथिंग, थर्ड रो में यस। सो थ्री फोर, थ्री फोर पोजीशन बिकम द पिवोट एंड द फोर्थ कॉलम बिकम द पिवोट। कॉलम बोलते हैं हम पिवोट जब देखते हैं तो पिवोट कॉलम, नॉट द रो। ओके, so pivot column and pivot element. Now see, fourth, the last one, no, nothing, no pivot element and it's not pivot column as well. Okay, so clear all this?